Now let us take an example. While solving question, you can proceed directly as we did in article, or you can use the formula. You can use final formula directly. This one. Yeah, but if you have standard cases like this, standard case, then you can use direct formula. So, for example, solve this boundary value problem. Ut equals to uxx 0 to 1 and t is positive. We have initial condition and two Newman boundary condition. Ux at left boundary is 0. Also, derivative of u at right boundary, that is also 0. So solve this problem. So this is heat equation. Okay, standard case with Newman conditions, Newman boundary conditions. So in usual notation, here L is 1, 0 to L. Ut equal to k uxx, k is also 1. And initial condition, that is this phi of x, when t equals to 0, that is x minus x square. And other two conditions are same, 0. ठीक है, अगर आप ये देखोगे स्टैंडर्ड फार्मूला. Okay, so k is 1, L is 1, phi x is this x minus x square, and these conditions are same, boundary conditions. So using direct formula, so solution is this one. Just write this formula, and where coefficients are given by this. So solution is uxt is equal to a0 plus summation n equals to 1 to infinity an e power minus m square pi square by l square. L is 1, k is 1, so n square pi square t cos n pi x by l. L is 1. Okay, and where a0 is, what is a0? 0 to l, 1 by l, l is 1, integral of this. So just compute this integration, this will be 1 by 6. And other coefficients a and r, 2 by l, l is 1, 0 to l, l is 1. Okay, uh, phi x multiply by cos n pi x. तो इसको आप करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. पहले लेना x cos n pi x, x फर्स्ट, cos सेकंड फंक्शन, फिर x स्क्वायर में भी सेम. So final answer I am writing, just do the integration. 2 by n cube 1 plus. Okay, so for n equals to 1, 2, 3, etc. Then you can write final solution. Okay, so this is heat equation with Newman. तो हमने पहले एग्जांपल किया था, यहाँ पे डायरेक्टली यू हैड cosine Fourier series, but here phi x is not a Fourier series. This is a polynomial. So you need to compute Fourier coefficient by definition by using these two formula. A0 is this and an is this. So
So fit value here. So final solution is uxt is a0 1 by 6 plus you can write 2 by pi q constant outside and 1 to infinity. Then you can take you can write negative also outside. So minus 2 by pi cube summation n equal to 1 to infinity. So 1 plus minus 1 power n divided by n cube e power minus n square pi square t and cos n pi x. So this is the solution of heat equation with standard Newman boundary conditions. So now I'll take an example of mixed boundary conditions. So mix means that at one end you have Dirichlet and at other end you have Newman and vice versa. Okay, so I'm illustrating this by taking an example. Let us take heat equation ut equals to uxx 0 to 1, t is positive. You have initial condition phi of x and you have condition that ux 0t at left hand point and right it is 0. So this is some kind of mixed boundary condition. जो राइट बाउंड्री है इस पे तो ड्रिचले है ना u1t u का वैल्यू दे रखा है u1t ड्रिचले बट यहाँ पे मिक्स है ड्रिचले भी है लेफ्ट बाउंड्री पे और न्यूमन ड्रिचले मतलब u और न्यूमन ux. So you have some mixed kind of boundary conditions. So working way is similar, but at the end you may get different series. You have seen in earlier examples that either you got Fourier sine series or you got Fourier cosine series. और ये टॉपिक हमने ओडी में भी पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो ओडी में बाउंड्री वाली प्रॉब्लम थी पढ़ा था साइन मिला था एक बार कॉस मिला था और एक बार मिक्स मिले थे दोनों साइन और कॉस just revise Sturm-Liouville boundary value problems in which you have studied 3 cases. यहाँ पे भी सेम है x में OD बन रहा है सेकंड ऑर्डर you got x double dash. So this is similar to Sturm-Liouville boundary value problem. T में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है x में तो सेम ही है you got second order OD. So we proceed. अब ये इस तो स्टैंडर्ड आर्टिकल नहीं है you have to go from the beginning. So let us take u equals to so use separation of variable fit in equation. So ut so this implies x double dash by x equals to t dash by t equals to you can write some constant lambda. So
From here you get 2 OD. Okay. So 2 OD. One is x double dash minus lambda x equals to 0. And second one is first order in time. Okay, so now we write boundary condition. So left boundary जो था u x 0t, that will be डेरिवेटिव कर दो, so x dash x को 0 फिट कर दो. ठीक है, ये बनेगा लेफ्ट बाउंड्री. और लेफ्ट बाउंड्री है क्या, चाहे आप इनको इक्वल लिख लो, डिफरेंस 0 है, सो बोथ आर इक्वल. अब किसके इक्वल है ये, u 0t के, यानी कि x 0 t and t is positive. So if you take these two, t is in both sides, so you can write x dash 0 equals to x 0. So this is the left boundary condition. Similarly, right boundary, वो तो सिंपल है, u1t that will be x1t, this is equals to 0. So this implies x1 equals to 0. So these are two boundary condition for this OD. So our aim is to solve this OD subject to boundary conditions, these two boundary conditions. Okay. So now you need to take 3 cases for lambda equals to 0. This is just homework, and lambda equals to positive. You can check, we get only trivial solution. Please verify it. We did it many times. Okay. You will get 0 solution. Third case for lambda negative, you can let lambda equals to minus beta square. Okay. So therefore OD is x double dash plus beta square x equals to 0. तो solution क्या होगा इसका, C1 sin beta x plus C2 cos beta x. So now conditions are in term of derivative, so just differentiate it and then use boundary conditions to find constants. Okay, so write x dash, so C1 beta. आप इनको साइन कॉस को आप किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, यू कैन राइट इन एनी ऑर्डर. तो यू कैन राइट कॉस और साइन जैसे मर्जी. Okay. So boundary condition, so x0 equals to x dash 0. This gives, so what will be x0, sin 0 0, so C2 बच जाएगा. C2 equals to x dash 0 cos 0 is 1 C1 beta. ओके, तो C2 आपका आ गया, तो आप सॉल्यूशन को लिख सकते हो C1 को कॉमन और sin बीटा x प्लस
बीटा कॉस बीटा एक्स। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू 1, दिस गिव्स क्या बनेगा, x को 1 फिट कर दो, सो साइन बीटा प्लस बीटा कॉस बीटा C1 इक्वल्स टू 0। तो अगर C1 भी 0 है तो यहाँ से C2 भी 0 आ जाएगा। ओके, सो यू विल हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर आप C1 को नॉन जीरो लिखते हो, सो यू हैव साइन बीटा प्लस बीटा कॉस बीटा इक्वल्स टू 0 और tan बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा। सो दिस इक्वेशन, जो इस अगर आप रूट फाइंडिंग के सेंस में देखोगे, आप न्यूमेरिकल में पढ़ा होगा, दिस इज tan x इक्वल्स टू माइनस x। सो दिस इक्वेशन डोंट हैव closed form solution, that you don't have a formula to write the solution, but still you can find its numerical solution. ठीक है, so this equation can be solved numerically. You can apply Newton's method. Okay, so use Newton's method and try to locate its few roots, and you can check that tan x equals to x, this has infinitely many solutions. Okay, tan अगर आप ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और tan की ब्रांचेज होती है ना, ऐसे ब्रांचेज, ठीक है, ऐसे ब्रांचेज। so every point cutting point, so these जीरो भी एक है, so these all are solutions. अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो you can go this side, यहाँ भी ब्रांच आएगा, so you have many solution, non-zero solutions. Okay, so this equation can be solved numerically by using any numerical technique. If you remember, ओडी में भी ये बना था हमारे पास केस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, tan x इक्वल्स टू x और माइनस x समथिंग। सो इसको सॉल्व करके आपको बीटा मिल जाएगा, जैसे पहले आपको मिला था बीटा इक्वल्स टू n पाई बाई l। सो नाउ वी डोंट हैव ए क्लोज फॉर्मूला। देन फाइनली आप सॉल्यूशन लिख दो, सो दीज आर आइगन वैल्यू। ओके, सो लेट lambda n denote the nth eigenvalue for n equals to 1, 2, 3, etc. And eigen functions are, जो x हैं आपके, वो बन जाएंगे साइन बीटा एक्स प्लस बीटा कॉस बीटा एक्स, बीटा n कर दो, n लगा है ऐसे। सो फाइनली जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, जनरल सोल्यूशन इज ux is, okay, so take their linear combination। अब c1 को मैं लिख रहा हूँ, इसको भी आप कांस्टेंट को भी cn लिख दो, cn या an जो भी लिखना हो आपने। अच्छा, टाइम वाली सॉल्व नहीं करी अभी हमने, ओके सॉरी। सो अभी तो ये करा, टाइम वाला रह गया ना अभी। सो नाउ वी सॉल्व।
टी डैश प्लस लैम्डा बीटा स्क्वायर के टी इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी c3 e पावर माइनस बीटा स्क्वायर, के तो है ही नहीं, के वन था, बीटा स्क्वायर टी। ओके, ये तो सिंपल है। सो नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन। सो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, so we have जनरल सॉल्यूशन uxt। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर अगर आपने एन में लिखना है तो उसको टी एन लिख दो, उसको बीटा एन कर दो, ठीक है। सो मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन ऐड। तो मल्टीप्लाई करोगे तो C1 C3 को आप नया कांस्टेंट लिख सकते हो। सो इन प्लेस ऑफ C1 C3 यू कैन राइट न्यू कांस्टेंट Cn e पावर माइनस बीटा एन स्क्वायर टी, देन साइन बीटा एन एक्स प्लस बीटा cos बीटा एन एक्स। अब Cn कैसे कंप्यूट करोगे? हाउ यू कंप्यूट Cn? Cn कैसे कंप्यूट करोगे? ये फूरियर सीरीज बन गया साइन कॉस वाला इनिशियल कंडीशन से। नाउ यूज इनिशियल कंडीशन, फिर t इक्वल्स टू 0, e पावर 0 1 बन जाएगा। सो यू हैव साइन बीटा, चाहे आप सेपरेट करके लिखना, सेपरेट करके लिख लो। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फुल फूरियर सीरीज। ओके, फुल फूरियर सीरीज, coefficient multiply by sine, coefficient multiply by cos। Okay, so this is just Fourier series। तो कैसे निकालोगे Fourier coefficient? How you compute? भूल जाते सब कुछ है ना। Where Cn is inner product of phi x with x and division x with मतलब जो बचा है इनर प्रोडक्ट लेते हो आप इसका, इसका चल राइट हैंड ये लिख लो इधर, u सॉरी ux0 इक्वल्स टू phi of x। बीटा तो नॉन है ना, बीटा तो यहाँ फिट कर दोगे जो भी आपका नंबर होगा। सो यू कैन कंप्यूट फूरियर कोएफिशिएंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इनर प्रोडक्ट फाई विद फाई का इनर प्रोडक्ट इसके साथ एंड देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्सन विद एक्सन। और इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कैसे करेंगे इंटीग्रल की सेंस में, 0 to 1 phi x sin बीटा x प्लस बीटा cos बीटा x dx डिवीजन 0 to 1 sin बीटा x प्लस बीटा cos बीटा x सेम का सेम के साथ। So these are the Fourier coefficients।
करते हो एग्री? यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? नो? जस्ट रिकॉल द टॉपिक, सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। वहां पे हमने ये लिखा था, फोरियर सीरीज लिखा था कि किसी फंक्शन को आप ये लिख सकते हो ए एन साइन बी। जनरल हमने पूरे से लिखा था ना, अगर साइन बीटा एक्स प्लस समेशन बी एन कॉस बीटा एक्स, तो जो ए एन और बी एन का वैल्यू है वो आपको मिलेगा इनर प्रोडक्ट के साथ, एफ एक्स का साइन के साथ इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ साइन विद साइन। और बी एन कैसे मिलेंगे? एफ एक्स का इनर प्रोडक्ट कॉस के साथ, फिर कॉस का कॉस के साथ। और इनर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे है? यू हैव ए स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो व्हाट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन? दिस इज जस्ट इंटीग्रल, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, देन इंटीग्रल जो भी आपका लिमिट है 0 टू L जो भी है। ओके, सो इनर प्रोडक्ट इज जस्ट multiply both function then integrate. So this is an example of inner product. As you know, there are many inner products. So in the space of continuous function, inner product is just multiplication of functions then integration. Next I take inhomogeneous boundary value problems. So firstly I'll start with inhomogeneous or non-homogeneous, you can say inhomogeneous heat equation. So we consider non-homogeneous heat equation with initial condition when t equals to 0, this is just phi of x, and with the Dirichlet boundary condition u0 ult equals to 0. Okay, so this is non-homogeneous heat equation with first one Dirichlet boundary conditions. Dirichlet क्यों? क्योंकि u पता है आपको, है ना? अगर डेरिवेटिव होते then you say this is Newman boundary condition. So earlier you had ut minus k uxx equals to 0. So there was no f. Okay, so you were able to separate the variable. Okay, but now you have a source function f which may not be separable. ये तो गिवन फंक्शन है ना, अब इसका नहीं पता कि ये यू कैन सेपरेट इट x और t कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। बट हमने अब आपको हमें क्या मिल रहा है कि यू आर सॉल्विंग ए बाउंड्री वाली प्रॉब्लम एंड यू आर गेटिंग आइगन फंक्शंस एंड वी कैन यूज, एक हमने पहले पढ़ा था आइगन फंक्शन एक्सपेंशन। अब ये क्या होता है कि आपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, सो यू गॉट आइगन फंक्शंस, जैसे आपको मिलते हैं ना साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये मिला कॉस, ठीक है? तो कोई भी फंक्शन हो, आप इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आएगा
यू कैन राइट इट। इसको आप बोलते हो आइगन फंक्शन एक्सपेंशन। ओके, so you solve a boundary value problem, you got eigen functions sine, cosine or mix, and you have another function some f, then you can write this function as a linear combination of these eigen functions. So we will use this concept to solve this non-homogeneous problem. Okay, I advise you to all just revise the topic boundary value problem for OD. Everything is same here. Okay, so since uh, fxt may not be separable, so we cannot use or you can say we cannot use directly separation of variable. So instead we can use the eigenfunction expansion, eigenfunctions of the corresponding homogeneous equation। यानी कि पहले आप होमोजेनियस सॉल्व कर लो, ठीक है, आइगन फंक्शन निकाल लो एंड यूज दोज आइगन फंक्शंस टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस। ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस प्रॉब्लम and then we look for a solution of the form। तो इस फॉर्म में हम सॉल्यूशन को we will look so some coefficients, तो आपका पहला टास्क क्या है, अब इसको होमोजेनियस सॉल्व करना, ठीक है। तो जो उसके आइगन फंक्शन है दे विल बी साइन n पाई x by l। Okay, so we solved earlier where sin n pi x by l are eigen functions for homogeneous heat equation। ओके, तो इनको आप नंबर लगा देते हैं हम। So say this is first, say this is second। अब जो सेकंड है, अब आपने ये भी फूरियर सीरीज ही है, साइन के मल्टीपल में लिखा है, दैट इज आल्सो ए फूरियर सीरीज। नहीं, फूरियर सीरीज है सेकंड। तो इक्वेशन 2 is a Fourier series and then Fourier coefficients are, तो आप u and t को क्या लिख सकते हो, देखो सीरीज x के सेंस में है, t तो रहेगा अपने आप, दे विल बी 2 by l 0 to l uxt sin n pi x by l dx। okay, say this is 3। सिमिलरली आप f को भी लिख लो फोरियर सीरीज फॉर्म में, n इक्वल्स टू 1 to infinity, f के कोएफिशिएंट में लिख रहा हूँ f and t, जैसे आपने u को लिखा है वैसे ही f को,
और कोफिशिएंट क्या होंगे, दीज आर फूरियर कोफिशिएंट 2/L 0 to L fxt sin n pi x by L dx। ओके, अब आप सेकंड से आप निकाल लीजिए यू एक्स एक्स, इक्वेशन में फिट करेंगे। अब यू एक्स एक्स सीरीज को डिफरेंशिएट कर दो, टर्म बाई टर्म करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, कॉस का फिर साइन, तो साइन मिलेगा आपको एन पाई एक्स बाई एल, और ये एन पाई एल 2 बार आ जाएंगे, जस्ट डिफरेंशिएट। तो एक बार टी के सेंस में भी कर दो यू टी, जब टी के सेंस में करोगे तो यू एन डैश आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब ये सारी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, यू एक्स एक्स यू टी एफ, फिट इन इक्वेशन फर्स्ट, यू टी माइनस के यू एक्स एक्स इक्वल्स टू एफ। ठीक है, और सारे आपने, इसको भी सीरीज में लिखा मैंने, इसका भी सीरीज लिखा, इसका भी सीरीज, इसका भी सीरीज। ओके, सो एवरीथिंग इज नाउ इन सीरीज, so fit all value in PD। okay, so UT UXX and F, now UT minus K UXX equals to F। तो मैं सम को कॉमन लिख रहा हूँ, जस्ट सीरीज भी कॉमन आ जाएगी ना, यू एन डैश टी, के आएगा एन पाई बाई एल स्क्वेयर यू एन टी, साइन तो कॉमन आ गया यहाँ से ना, लेफ्ट हैंड साइड साइन एन पाई एक्स बाई एल इक्वल्स टू एफ एफ एन टी साइन एन पाई एक्स बाई एल। सो देयरफॉर दोनों साइड में ये है, अगर आप टर्म बाय टर्म लिखो या एक साइड ले आओ इनको, उसका मीनिंग ये इसके इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर यू हैव इक्वल्स टू एफ एन टी, और जो एन की वैल्यू थी वो 1 2 3 एटसेट्रा। अब देखिए ये यू एन, ये यानी कि ये क्या है, डी यू बाई डी टी है, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ओडी। पी के सेंस में देखोगे तो यू डैश प्लस यू इक्वल्स टू समथिंग, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ओडी विच इज फर्स्ट ऑर्डर ओडी विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस फॉर्म में है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ओडी विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स के सेंस, एक्स की जगह टी है यहाँ पे, विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर के एन पाई बाई एल स्क्वायर टी। तो सोल्यूशन क्या होगा,
आप ये करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा यू एन डैश, सॉरी यू एन, चाहे आप ये लिख सकते हो, ये डी बाई डी टी बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से, एंड राइट हैंड साइड विल बी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट एग्जैक्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड. So integrate from 0 to t, just integrate from 0 to t gives, so unt equals to u0 e power minus k plus e power minus k n pi by l square t, इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 0 to t, आता है इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड k n pi by l square fn s ds. लेफ्ट और राइट को इंटीग्रल कर दो, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, यू एन टी माइनस यू जीरो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, साथ में ये भी रहेगा e की पावर k, तो उसको इधर ले जाकर करोगे तो e की पावर माइनस k बन जाएगा. और ये सेकंड टर्म कैसे आ रहा है, आप यही करते थे ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो सोल्यूशन क्या होता था, y e टू पावर p dx और e की पावर माइनस p dx से मल्टीप्लाई करते थे. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 0 टू du है तो 0 टू t तक कर रहे हैं, तो जब इंटीग्रल करोगे तो ut माइनस u0 भी आएगा लेफ्ट से ना, u0 को साथ में ये रहेगा, u0 को राइट में ले जाओ, ये जस्ट डू डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, इसमें हाँ u n 0 है. Now use initial condition. Use initial condition. ux0 which is phi of x, सीरीज में यूज करना, n इक्वल्स टू 1 to infinity un0 sin n pi x by l. तो जो un0 आ रहा था वहां पे, दैट इज फूरियर कोएफिशिएंट, un0 को आप निकाल सकते हो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 by l, अगर आप उस सेंस में लिखते हो, n है तो यहाँ पे सब में n लगा दो, phi n, तो ये कैसे मिलेगा, un0 2 by l 0 to l phi x sin n pi x by l dx. Therefore solution is summation n equals to 1 to infinity phi n e power minus k and pi l square t 0 to t s minus t fns
PNS और पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई करके हैं साइन n पाई x बाई एल। देखिए यूएक्सी मैंने कैसे लिखा है, गो बैक हियर, यूएक्सटी इज गिवन बाय 2, तो 2 कैसे मिलेगा, यूएनटी निकालो, उसको साइन n पाई x से मल्टीप्लाई कर लो, तो यूएनटी निकालने के लिए मैंने ये किया। सो यूएनटी मिल गया मेरे को ओडी से ये, सो दिस इज यूएनटी। इस यूएनटी को साइन n पाई x बाई एल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। और यूएनटी इज यूजिंग u0, दिस इज, एंड un0 मैंने ये निकाल लिया ये। ओके, so this is the working procedure for non-homogeneous equation. So what is the idea? First solve the homogeneous one, okay, first solve homogeneous, find eigenfunctions, okay, then solution of non-homogeneous can be written as linear combination. So इस फॉर्म में लिखो नॉन होमोजीनियस को, टू फॉर्म में लिखिए, फिर यहां से आप उसी फॉर्म में आप f को भी लिखो, उन्हीं फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, देन कंप्यूट डेरिवेटिव uxx ut अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में फिट कर दो, वहां से आपको टाइम में, सो यू विल गेट ए ओडी इन टाइम वेरिएबल, उसका इंटीग्रल करो, यू गॉट यूएनटी। अब यूएनटी मिल गया, इनिशियल कंडीशन से un0 निकाल लो, ओके, देन यूएनटी को आप जो भी फंक्शन है उनसे मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ, फिर सम कर दो, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। Okay, so tomorrow we will again we will repeat it. You may have non-homogeneous equation and you may have, अभी तो हमने जो कंडीशन लिखा था ना, हमने कंडीशन हमारे पास क्या था, u0t equals to 0, ult equals to 0, but this is not always possible. Maybe you have a function h here. Oh, so you may have non-homogeneous boundary conditions, and working procedure for non-homogeneous boundary condition is the same, जो भी हमने लिखा है उसी फॉर्म में जाना है आपने। So in PD, in OD, everywhere you solve the homogeneous problem, यही हमने डुहामेल प्रिंसिपल में किया था। So okay, solve the homogeneous, get an idea and use that solution to write the solution of non-homogeneous equation. That is the main crux. Okay, so tomorrow we will take heat equation with non-homogeneous boundary condition and some special cases. Any query? Okay, so excuse me, sir.